Hello friends, in this video I will be doing analysis of your upcoming 10th CBSE boards examination with respect to mathematics. I'll try to be as brief as possible. Okay, so let's start. तो इस एनालिसिस में मैंने लिए हैं 9 पेपर्स. I've taken 9 papers starting from 2017. So 2017 में I have taken both the papers, general paper as well as the compartment paper, because paper is almost similar, the marking scheme is almost similar. So we have taken 2 papers of each year. So 2017 के 2 पेपर्स लिए, 2018 के हमने 2 पेपर्स लिए, 2019 के 2 पेपर्स लिए और 2020 के 2 पेपर्स लिए. तो ये हो गए 8 पेपर्स. 2021 में नॉर्मल पेपर हुआ नहीं था, but the compartment paper happened, so we have taken the compartment paper also. So total number of papers which we have taken is 9. तो अगर इन पेपर्स को देखें तो इन पेपर्स में जो टोटल मार्क्स हैं वो अराउंड 80 हैं. तो 2017 में 90 थे, but then they have reduced to 80 and it has remained the same till now. Okay, and the number of questions is around 30-35. यहाँ पर आपको 21 में लगेगा कि 48 क्वेश्चंस है, but ये 48 क्वेश्चंस का पेपर नहीं था, इसमें बहुत सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस थे. So we have taken that actual number of questions which were there. So let's move on to the question distribution. So now I'll talk about the question distribution. So if I talk about marks wise question distribution की बात करते हैं, तो जो मैं अभी बोल रहा था कि नंबर ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो बढ़ गए हैं. अगर आप 2017 में देखोगे तो देयर वर ओनली 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, बट एज वी आर मूविंग ग्रेजुअली, पहले 4 से 6 क्वेश्चंस हो गए 1 नंबर के, फिर 20 हो गए 2020 में, और 2021 में देयर वर 32 क्वेश्चंस. Around 40% questions have come of 1 marks. तो 1 marks questions जब बढ़ते हैं तो by default the difficulty level of paper it reduces. Paper becomes a bit more easy. और आप 23 का अगर sample paper देखेंगे तो उसमें भी there are around 26 questions of 1 marks which have been given. So in general, short answer questions is increasing. The number of short answer questions is increasing. So if you see 2 marks question, that has remained almost constant. There were around 13 to 15% questions have come of 2 marks. 3 marks is also almost the same, between 33% to 26%. तो 20 to 30 और 25 to 33% के बीच में 3 marks आ रहे हैं. बट अगर आप 4 marks के क्वेश्चन देखो तो पहले 49% थे, जो कि अब बहुत कम हो गए हैं, 30% के करीब थे in 2020. In 21 you had 5 marks questions instead of 4 marks, but the percentage was again 19. तो 4 and 5 marks के जो क्वेश्चंस है उनकी परसेंटेज हैज ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड and 1 marks question की percentage has increased. So in general the paper would be easy. That is the feeling which we get from this analysis. Now let's move on to topic wise analysis. So how I have done the analysis, I'll just give you a brief idea. So this slide is of question tagging. I'll try to give you the link of this Excel sheet, or I'll give you the PDFs in the description below, but I'll just give you a brief idea as to how I have reached to this analysis. So what I have done is हमने ये सारे के सारे पेपर्स को एक शीट में लिखा. सो 2017 का पेपर है, जैसे आप मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ. सो दिस इज द जनरल पेपर ऑफ 2017. इसके सारे क्वेश्चन नंबर्स लिखे गए हैं, उसके सारे मार्क्स लिखे गए हैं, उसके सारा क्वेश्चन टाइप लिखा गया है, फिर उसको उसमें कौन सा चैप्टर आया और कौन सा सब टॉपिक आया वो भी मार्क करा गया है, एंड देन whether it is easy, medium or difficult, that has been marked. So this whole analysis has been done for 9 papers: 2017 general, 2018 general, 19 general, 20 general. Then we talk about the compartment papers. So we have done this analysis for 9 papers. Now let's talk about the topic subtopic list. So this is the topic subtopic list which has been taken from NCERT. Now there is some rationalized content which has been given this year. So I have marked 0 for those subtopics which are not coming. तो ये वाले टॉपिक्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये बाकी सारे टॉपिक्स जहां पर 0 मार्क नहीं है वो हमारे सिलेबस में है. तो इन टॉपिक्स में मार्क सम येलो, एज यू कैन सी. तो येलो आर दोज सब टॉपिक्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे रियल नंबर्स में रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक. इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सब टॉपिक में से आ रहे हैं. पॉलिनोमियल्स में से ऐसा कोई एनालिसिस नहीं निकल के आया, तो आई हैव नॉट मार्क्ड एनी येलो. सिमिलरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने की मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू शुड फोकस ऑन दैट. देन वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में टेकिंग आउट nth टर्म ऑफ एन एपी एंड देन सम ऑफ एन एपी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, व्हिच आई हैव मार्क्ड येलो. देन ट्रायंगल्स में मेजरली द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिंस एरियाज वाला जो टॉपिक है इट हैज बीन रिमूव्ड. आगे चलते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला इन सेक्शन फार्मूला आर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड देन इंट्रोडक्शन टू trigonometry में trigonometric ratios again is the most important subtopic, and heights and distances is the most important subtopic in
एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आगे चलते हैं तो सर्कल्स में टेंजेंट्स पे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा देखे गए हैं, जो आए हैं पिछले सालों में। कंस्ट्रक्शंस तो पूरा ही हट गया है सिलेबस से। आगे चलते हैं तो एरियाज में, एरियाज ऑफ सेक्टर and segment of a circle, this seems to be the most important topic. That is the analysis with respect to the subtopics. Now, how have I arrived to this analysis? Let's move on to subtopic wise marks. तो ये जो हमने टैगिंग करी है, इससे हमने हर क्वेश्चन के में कौन सा टॉपिक आया था वो टैग करा, फिर कौन सा सब टॉपिक आया था वो टैग करा, जैसे मैंने बताया है। तो उससे हमने ये एनालिसिस निकाला है कि कितने कितने मार्क्स हैं। तो जैसे आप देखेंगे रियल नंबर्स जो है अभी तक 42 मार्क्स का आया है इन दोस 9 पेपर्स। सो इन दोस 9 पेपर्स इफ आई टॉक अबाउट द टोटल सम ऑफ मार्क्स इज 740। सो इफ आई मूव ऑन टू द पेपर लिस्ट में भी टोटल सम ऑफ मार्क्स इज 740। तो 740 मार्क्स में से इन दोस 9 पेपर्स 42 मार्क्स जो हैं वो रियल नंबर्स टॉपिक में से आए हैं। उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 19 मार्क्स जो है रिविजिटिंग इरैशनल नंबर सब टॉपिक्स हैं। So that is why I'm saying that this is the most important topic. बाकी 14 मार्क्स के क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं जो कि हमारे सिलेबस से हट गया है, तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। That's how it is. Similarly, ऐसी पॉलिनोमियल्स में ऐसा कुछ नहीं मिला। आगे चलते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आप देखोगे 58 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं out of the total marks. उसमें से maximum questions 20 to 22 have come from nth term of an AP and some of first n terms of the AP उससे आए हैं। तो this is how we have done this analysis. So how I've reached, I have given you some logic of how I've reached to these subtopics, why these are very very important subtopics. Now let's move on to the easy, medium and difficult part. इसमें हम difficulty की बात कर लेते हैं, ठीक है। So आप देखोगे तो मैंने मार्क करा है नंबर ऑफ इजी टॉपिक्स आर 11। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स विच आर देयर इन आवर सिलेबस आर 15 मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट कंस्ट्रक्शंस जो है वो पूरा जो है वो डिलीट हो गया है। कंस्ट्रक्शंस इज नॉट कमिंग एट ऑल। सो वी हैव 14 टॉपिक्स विच वी आर सपोज्ड टू स्टडी, आउट ऑफ विच इजी टॉपिक्स 11 हैं। 3 टॉपिक्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, और इन 11 टॉपिक्स में से 6 टॉपिक्स तो बिल्कुल ही आसान है। अगर आप देखोगे तो आई हैव डन सम ऑफ इजी एंड मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसकी जो परसेंटेज है वो 71% है। सो ऑल आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड दिस बाय 28 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस वैल्यू इज 71%, है ना। तो ये मैंने ब्लू से मार्क करा हुआ है। तो अराउंड ये देखो, ये जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये सारे ही इजी और मीडियम है ना। तो 14 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, दे हैव कम इन इजी फॉर्मेट और मीडियम फॉर्मेट। सो 100% इट इज आई हैव पुट इट इन द इजी मीडियम। सो अगर आप देखोगे तो देयर आर 11 टॉपिक्स व्हिच आर इजी, एंड आउट ऑफ देम 6 टॉपिक्स कौन से हो गए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, देन वी मूव ऑन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, देन वी मूव ऑन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन इट इज वेरी वेरी इजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद सर्कल्स में मेजरली क्वेश्चंस आर ऑफ इजी मीडियम टाइप। देन वी टॉक अबाउट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, दैट अगेन is easy, very easy actually. And then we talk about probability. So probability is also, it falls into that category of very easy. So these topics, they have more than, there is the percentage of easy medium questions in these 6 topics is around 74-75%. बाकी 5 टॉपिक्स में 60% से ज्यादा क्वेश्चंस आसान या मीडियम आए हैं। 71% क्वेश्चंस आर इजी मीडियम। यहाँ देखोगे तो 62% क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक आर इजी मीडियम, यहाँ 69% है। तो ये ऐसे करके अगर आप देखोगे तो देयर आर 11 टॉपिक्स जिनमें क्वेश्चंस 60% से ज्यादा इजी और मीडियम कैटेगरी के आए हैं, और उन 11 टॉपिक्स में से 6 टॉपिक्स आर सच जिसमें क्वेश्चंस 70-75% से ज्यादा easy medium type के आए हैं। So you have to focus on these topics. You should study these 3 topics, the 3 topics which are not falling into any color, which is surface, area and volume. Then we talk about areas related, not areas related to circles, some applications of trigonometry, introduction to trigonometry. ये जो 3 topics हैं, इनको आपको सबसे एंड में पढ़ना चाहिए। If we just talk about the percentage of content these topics have,
or the percentage of marks, तो 58 marks is around 8% of 740. Like 45 is around 6% of 740. तो 6% टॉपिक प्रोबेबिलिटी का है, जो कि बिल्कुल ही आसान है, तो आपको इसको करना चाहिए। तो 6% तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान या मीडियम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सबसे पहले करेंगे हम। ऐसे ही अगर आप देखो तो 4% ये एरिया रिलेटेड सर्कल है, ये 75% इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इजी और मीडियम टाइप की। आगे चलें तो ये देखो टॉपिक, ये 8% जो है इसकी वेटेज है सर्कल्स टॉपिक की, और ये 87% इसमें आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ चले 9% वेटेज, अगेन द मैक्सिमम वेटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड इट इज वेरी इजी, 94% इजी मीडियम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू हैव टू फोकस ऑन सर्कल्स, और प्रोबेबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। सिमिलरली इस टॉपिक में भी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में भी कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, ये दोनों टॉपिक में आके एक टॉपिक के बराबर है। एंड अगेन सो दिस हैज वेटेज ऑफ अराउंड 10% एंड दे आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स। ऐसी अगर हम ऊपर चलें, let's move upward. So arithmetic progression again is an easy topic relatively, and it has a weightage of 8%. So these topics, and if we go further, this has less weightage. Pair of straight lines मैं बोल रहा हूँ, आदत है 11th 12th की, तो pair of linear equations in two variables की बात करें तो this has less weightage, but then again it is a very very easy topic. तो आपको इन 5-6 टॉपिक्स पे फोकस करना है, और इन 5-6 टॉपिक्स की ऑन एन एवरेज वेटेज देखें तो 4% प्लस 8% 12%, plus 9% 21%, plus 8% 29%, plus 4% 33%, plus 6% 39%। तो अराउंड 40% जो कंटेंट है वो आसान है, उससे आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन 6 टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। दैट्स द एनालिसिस। सो आई विल शेयर विद यू the link of this Excel file, or I will just give you the PDF file so that you can just see these analysis which I have done. So I'll just try to summarize whatever we have done right now. So the summary is that number one, number of 1 marks questions has increased, and अगर 1 marks के questions की जो स्ट्रेंथ है या 1 मार्क्स क्वेश्चंस का नंबर अगर बढ़ गया है तो इन जनरल पेपर जो है वो आसान होता है, क्योंकि आपको ज्यादा लिखना नहीं होता है। नंबर 2, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस अगर आएंगे, या उसको हम जनरलिटी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें एक आंसर करेक्ट होता है, चाहे वैसा क्वेश्चन लिखा हो, चाहे लिखा हो कि सिंगल आंसर देना है या नहीं देना है, आपको एक लाइन लिखनी चाहिए, सो दैट देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स डिडक्टेड रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। आगे चलते हैं। इसके बाद हम इस आखिरी शीट पे आते हैं। इसमें वी हैव डिस्कस्ड that out of the 14 topics which are in our syllabus, 11 are actually easy, and out of those 11, 6 are very very easy, और उन 6 की जो वेटेज है that is around 40%। तो उन 6 पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बिल्कुल फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी अगेन इज वेरी वेरी, so please focus on these 6 topics. Okay, I hope you will do the best in the exam. Best of luck.